Good morning, student. Welcome you all. So today I am going to discuss with you the future tense, means the last topic of the future tense, that is future perfect continuous tense. So let's start. So in this particular video, we will see what do we mean by the future perfect continuous tense and where do we use it and the structure of this tense. So let's see the definition of the future perfect continuous tense. So the future perfect continuous tense, this tense indicates that action begin in the past, present or future is ongoing and complete in the future. Means particular action and it's begin in the past time, whether it's present or future. मतलब कोई action, कोई particular action जो past time में start हुआ हो या future में start हुआ है, present में start हुआ है, it doesn't matter for us, but it's still ongoing and complete in the future. But the main point is, and the important point is, that particular action is ongoing and complete in the future time only. All right. So this time, the time reference is used in this sentence. So in this sentence, time reference का use होता है, means इस टेंस में हम टाइम रेफरेंस का यूज करेंगे. जैसे अब टाइम रेफरेंस हमने और सारे कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में द सेंस ऑफ फॉर, बट इन दिस पर्टिकुलर टेंस वी यूज अपार्ट फ्रॉम द सेंस ऑफ फॉर वी यूज by to indicate time reference. All right. So here are some examples. Let's see this also. I will have been working in the company for 4 years. यानी अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, टाइम गिवन है. ठीक है, यहाँ ऑलरेडी टाइम गिवन है फॉर 4 years. अब 4 years के लिए हमें क्या है, इस कंपनी में 4 years से मैं इस कंपनी में काम कर रहा होगा. यानी 4 साल से वो इस कंपनी में काम कर रहा होगा. यानी ये जो काम है वो ऑलरेडी 4 साल पहले स्टार्ट हो चुका था, पास्ट में स्टार्ट हो जाए. अब कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट में प्रेजेंट में, बट स्टार्ट पास्ट में हुआ था इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग और 4 साल तक वो कंटिन्यू होगा. राइट. अब फ्यूचर में ही जब वो 4 years कंप्लीट हो जाएंगे तब तक ये क्या कर रहा होगा, वहां पर काम कर रहा होगा. ऑल राइट. सो सेकेंड सेंटेंस इज, when I turn 24 I will have been studying at university for 5 years. यानी कि जब मैं 24 का हो जाऊंगा तब I will have been studying at university for 5 years. यानी तब मैं 5 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा. यानी जो वर्क है, मतलब 24 के हो जाएंगे तब वो क्या करेंगे, 5 साल से वो क्या कर रहे होंगे, उस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे. ऑल राइट. So now see the structure of the future perfect continuous tense. So the future perfect continuous tense describes a future ongoing action or activities completed after a certain instant of time. All right. So see the first positive sentence. Let's see first positive sentence. So in this sentence the structure is subject, will or shall plus have been, first form of the verb with ing, and the object and the time duration or the time reference. All right. So in this tense में हम will और shall का use have been के साथ करेंगे. You all know with the continuous tense के साथ हम क्या use करते हैं, first form of the verb और ing का हम continuous tense के साथ use करते हैं. All right. See the example. John will have been going to London next month. अगले महीने जॉन लंदन जा रहा होगा. ठीक है, अगले महीने जॉन क्या कर रहा होगा, अगले महीने जॉन लंदन जा रहा होगा. नाउ सिमिलर, इन अ सिमिलर वे, in negative sentence, subject instead of will not, you can also use won't, because won't is the short form of will not. All right. So subject plus won't plus have been or shall not, you can also use first form of the verb and ing, then object, then the time duration or the time reference. So John will not have been going to London next month. यानी next month John London नहीं जा रहा होगा. Clear? Next is will. Obvious है. अब जब हम interrogative sentence बनाएंगे, क्वेश्चन फॉर्म
मेक करेंगे, तो while making the interrogative sentences always use the helping verb at the beginning of the sentence, all right, and put the subject in the place of helping verb. So what is the place of helping verb here? So where's the place of helping verb here? Second position. So second place, कौन सी place थी? Second place. तो just put second subject, then first position helping verb. So will subject have been verb first form of the ing object and the time duration. So will John have been going to London next month? अब क्या अगले महीने जॉन लंदन जा रहा होगा? क्लियर? सो अब नेक्स्ट मंथ की बात आ गई तो फ्यूचर की बात आ रही है यहाँ पे. क्लियर? फ्यूचर की बात आ रही है जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे. हैव है, दैट्स व्हाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम यूज कर रहे हैं. Okay, now see some sentences, positive, negative or interrogative one. First, we will discuss about only the positive sentences. At 4 o'clock, we will have been waiting you for 1 hour. Okay, so अभी क्या है, हम 4 बजे से हम तुम्हारे लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे. She will have been, second sentence, she will have been sleeping at home for 2 hours when we arrive. मतलब जब हम पहुंच चुके होंगे तब तुम 2 घंटों के लिए सो रही होंगी. Alright, so he will have been playing the guitar for 10 years. वो 10 साल से गिटार बजा रहा होगा when he turned 20. जब वो 20 साल का हो जाएगा तब से वो 10 साल के लिए गिटार बजा रहा होगा. They will have been teaching German for 5 years by the end of this year. So वो इस साल के अंत तक 5 साल से जर्मन पढ़ा रहा होगा. यानी अब क्या काम हो रहा है यहाँ पे कि इस साल के अंत तक, राइट, वो क्या पढ़ा रहा होगा? 5 साल से जर्मन पढ़ा रहा होगा. यानी जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और 5 साल तक की बात हो रही, तो ऑनगोइंग है. और ये कब कंप्लीट होगा? जब 5 इयर्स फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएंगे. सो विल सी कि क्या यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चाहे वो पॉजिटिव थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सबके साथ हम यहाँ पे विल और शेल का ही यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे. टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, आईएनजी हमने ऐड किया. क्या यहाँ पे टाइम रेफरेंस दिया हुआ है? यस दिया हुआ है, फॉर 5 इयर्स दिया हुआ है. और हमने और क्या टाइम रेफरेंस दिया? बाय द एंड ऑफ दिस हमने यहाँ पे यूज किया है. Alright, so see the negative one. They will not have been going for a picnic. वो पिकनिक के लिए नहीं जा रहे होंगे. We will not have been living there for 2 years by the end of this year. Means इस एंड के अंत तक, इस ईयर के अंत तक हम वहाँ पे 2 सालों से नहीं रह रहे होंगे. क्लियर? सो आई विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन लंदन नेक्स्ट समर. मीन्स अगले समर तक, यानी अगली गर्मी तक लंदन में हम नहीं रह रहे होंगे. यानी अब अगली गर्मी, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, वो अभी लंदन में रह रहे हैं मगर अगली गर्मी तक, यानी तो नेक्स्ट मंथ यानी वो वहाँ पे नहीं हो रहे होंगे. मतलब वो काम जो है वहाँ पे खत्म हो रहा होगा और रहने का जो काम है, जो ड्यूरेशन है रहने की, वो अभी मतलब ऑन गोइंग है. She will not have been studying Japanese next year. यानी नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो जापानीज नहीं पढ़ रही होगी. Alright. Now see the some question sentences. Will the baby have been playing with toys for 1 hour? क्या 1 घंटे के लिए बेबी खिलौनों से खेल रहा होगा? Will next example is, oh god, there are some technical issues again. Okay, so second sentence is, will you have been speaking English for 2 years by the end of this year? Means इस साल तक के अंत तक क्या तुम 2 साल से इंग्लिश स्पीकिंग कर रही होंगी? Will you have been making a cake in the kitchen? क्या तुम किचन में केक बना रही होंगी? Will they have been playing tennis since morning? क्या वो सुबह से
टेनिस खेल रहे होंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पे कुछ हिंदी टू इंग्लिश एग्जाम्पल्स है, वो भी आप लोग देख लीजिए, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड मी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours, वह 5 घंटों से पढ़ा रही होगी, वो पढ़ रही होगी, सॉरी। नेक्स्ट इज शी वोंट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही होगी। ये आप खुद भी आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट also, you can take screenshot also this page, so आप इसे अपनी रफ कॉपी में you can note down it also in your rough copies। will he have been working since morning, क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा। won't he have been running since morning, क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा। so अब सुबह, अब देखो सुबह से मतलब 5 से काम शुरू हुआ और सुबह से यानी अब तक वो दौड़ रहा, मतलब दौड़ रहा होगा। अब बात कर रहे हैं क्या वो फ्यूचर में ये काम नहीं कर रहा होगा। Where will he have been going for 12 years, क्या वह 12 साल से कहाँ जा रहा होगा। All right, now we'll see some usage. Where do we use the future perfect continuous tense? So action that will have started will have continued for some time and will still be in progress in the future either, मतलब फ्यूचर के टाइम पे वो कंटिन्यू भी हो, ऑनगोइंग भी हो और फ्यूचर में ही वो फिनिश्ड हो रही हो, खत्म हो रही हो, प्रोग्रेस में भी हो। सो फर्स्ट इज बिफोर अ स्पेसिफिक मूवमेंट, अब कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए हम भी इसका यूज करते हैं। दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू लंदन फॉर 4 hours बाय दिस टाइम टुमारो, यानी कल इसी समय पर वो लंदन जाने के लिए 4 घंटों के लिए वो लंदन जा रहे होंगे। 4 घंटों से वो क्या कर रहे होंगे, फ्लाइंग यानी ट्रैवल कर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे। ऑल राइट, सो यानी फ्यूचर में वो ये काम कर रहे होंगे और काम कब से स्टार्ट होगा, 4 hours तक के लिए और 4 hours से ऑनगोइंग भी होगा। नेक्स्ट अप इज बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस, यानी कोई अनदर एक्शन। वी विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल डे बाय द टाइम शी रिटर्न्स, मतलब जब तक वो आएगी तब तक हम क्या कर चुके होंगे, पूरे घर की साफ सफाई हम लोग कर रहे होंगे। ऑल डे ये काम हम कर रहे होंगे। ऑल राइट, सो देयर आर सम अदर यूसेज ऑल्सो to emphasize the duration of some action that will be completed at some other point in the future. By the end of this year, I will have been completing my graduation for 2 years. मतलब इस ईयर के एंड तक मैं अपनी 2 साल के लिए जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रही होंगी। ऑलराइट, मीन्स इस ईयर के एंड तक मैं वो काम कर रही होंगी। टाइम एक्सप्रेशन, आई विल have been watching TV for 2 hours, मैं 2 घंटों के लिए टीवी देख रहा हूँगा। by the time he comes home, जब वो घर आया होगा। clear? so I hope you all have must understood this tense, means the future tense perfectly. so till wait for the next video, okay? हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक लेंगे। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।